So hello everyone, once again I welcome you all to your YouTube channel The Nation is Calling You. In this video we are going to discuss relation of India and Sri Lanka. Okay, and also we are going to discuss the crisis in Sri Lanka, the crisis which is Sri Lanka facing right now are economic crisis. We are also going to discuss in the few slides of this video. So stay throughout the video and gain some geopolitical knowledge. Before moving forward, guys, I have a question for you. As usual, what is the India's ranking in the Global Air Power 2022? Recently, this ranking has been published, and India has tremendously performed well and making the China behind and get a new ranking. So you have to tell me in the below comment box, and also if you are not aware with this ranking, I will let you know in the ending of this video. So stay throughout this video. Let's move forward. India and Sri Lanka. As I have already told you in the previous video that Sri Lanka is a country located in the southeast of India. Okay, it is separated by this Park Strait. This is known as strait. Okay, Park Strait and the Gulf of Mannar. Okay, I also discussed the difference between a strait and a gulf in the previous video. So watch it thoroughly also. Okay, guys. And some facts related to Sri Lanka. Sri Lanka is a country which get independence in the year 1948 after the India. India got independence in 1947 on 50th of August. Okay, and Sri Lanka got it on 4th of February 1948. Its प्रीवियस नेम इज साइलेंट. श्रीलंका को पहले साइलेंट के नाम से जाना जाता था. ठीक है, इतना सा फैक्ट आप इंफॉर्मेशन याद कर लीजिए. सो इंडिया एंड श्रीलंका शेयर्ड अ फ्रेंडली रिलेशन फॉर नियरली 2500 years as Buddhism spread to Sri Lanka from India. बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था श्रीलंका में by the emperor the Ashoka. You all are well known with the emperor Ashoka. From your class 9 10th onwards you have studied it in history, ancient history in the class 9 10th. Okay, so Buddhism spread in Sri Lanka from India during the era of Mahinda, the son of Ashoka. Okay, Ashoka जब अपना क्रूअल अवतार छोड़ चुका था, जब उसने पूरी तरह से बुद्धिज्म को अपना लिया, तब उसने अपने इस बेटे को और अपनी बेटी को भेजा था इन द साउथ ऑफ द इंडिया टू स्प्रेड बुद्धिज्म. ओके, तो वो श्रीलंका में भी आया था उसी कारण से. ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ मैरीटाइम बॉर्डर सेपरेटेड बाय पार्क स्ट्रेट एंड इट इज द क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर. ठीक है, दो नेबर हैं इंडिया के बॉर्डर नेबर्स. पहला तो था इंडिया एंड पहला तो श्रीलंका और दूसरा था मालदीव्स. आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस वीडियो, सो वॉच इट आल्सो. ओके गाइस, both the countries have friendly relation, but relation remain ups and downs because of many issues that have strained the cordial relation between the two nations. ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया और श्रीलंका ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स, ऐसे कौन से अनफ्रेंडली रिलेशन फेस कर रहे हैं दिस टाइम पे, जिस कारण से इनकी रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. ओके, सो firstly let us discuss the understanding the population diversification of Sri Lanka. Almost Sinhalese जो एक ग्रुप है इनका श्रीलंका में, वो मेजॉरिटी पोर्शन में है. ठीक है, तमिल्स कंसिस्ट ऑफ अराउंड 12 to 20% and Sinhalese consist of 75%. Almost 3/4 of the population is of the Sinhalese. Okay guys, other communities are also there like Hindu, Christian, Muslims and other Jainism is also there in Sri Lanka, but that is in only minor communities. Okay, so let's move forward. India's roles in Sri Lanka's geopolitics landscape. ठीक है, we all know that civil war has been happening in Sri Lanka since from the period of 1980s to 2009. सिविल वॉर हुई थी जिसमें LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलियंस एक ग्रुप था जो फॉर्म किया गया था, जिसको सपोर्ट किया गया था बाय द इंडियन आर्मी. उनको ट्रेन किया गया था. क्यों ट्रेन किया गया था? क्योंकि जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पे तमिल पीपल और सिन्हलीज के बीच में आक्रोश था. सिन्हलीज के लिए फेवर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे. ठीक है, जिस कारण से तमिल पीपल को ज़्यादा राइट्स नहीं था कुछ भी, इसलिए तमिल पीपल खिलाफ हो गए थे इनके. और तमिल पीपल मेजॉरिटी में रहते भी नॉर्थ ऑफ द श्रीलंका में. ठीक है, इफ यू लुक एट दिस मैप ना, यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे ये नॉर्दर्न पार्ट में
तमिल्स पीपल रहते हैं मेजोरिटी में, और बाकी पूरे एरिया में डोमिनेंस है सिन्हालीज ग्रुप का। ओके गाइस, सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये सिविल वॉर हुई क्यों थी, क्योंकि मेजोरिटी सिन्हालीज की थी, डोमिनेंस में थे वो उनके राइट्स को मतलब कि वॉयलेट कर रहे होंगे, इसलिए ये वॉर शुरू हुई, सिविल वॉर शुरू हुई। फिर धीरे धीरे इंडिया ने इनको जो मिलिटेंट ग्रुप बन रहे थे तमिल्स के, उनको सपोर्ट करना शुरू किया अपने राइट्स के लिए। फिर वो भी हुआ, उसके बाद एक वो भी 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका में 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाएगा, जिस कारण से तमिल पीपल्स को भी उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, उनको भी एक मिनॉरिटी का दर्जा हटा के उनको भी मेजॉरिटी में शामिल किया जाएगा, उनको भी पर्टिकुलर राइट्स दिए जाएंगे टू फ्रेम the laws of the country and take part in majority of the in the elections also। okay, इसी के बीच में हुआ क्या कि पीएम राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया बाय दिस एलटीटीई, क्योंकि जब इंडिया एंड श्रीलंका बैठे आपस में बैठे आफ्टर दिस सिविल वॉर गोना टू एंड, तो एलटीटीई को पसंद नहीं आया, उन्होंने पीएम राजीव गांधी को असैसिनेशन कर दिया। तो इस कारण से ये जियोपॉलिटिक्स है, लैंडस्केप है ऑफ द इंडियन श्रीलंका रिलेशन। ठीक है गाइस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द मेजर इशू ऑफ कंसर्न्स, एज आई ऑलरेडी प्रीवियसली टोल्ड यू कि मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इश्यूज फेस कर रही हैं जिस कारण से ये दोनों कंट्रीज अनफ्रेंडली बनती जा रही हैं। मेजर रीजन है फिश का डिस्प्यूट, एज वी आर शेयरिंग द मैरीटाइम बॉर्डर, तो फिशिंग डिस्प्यूट तो होना ही है। इंडियन फिशरमैन यूजिंग मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स इन फिशिंग, जिनको मैकेनाइज्ड ट्रॉलर का मतलब नहीं पड़ता, वो होती है एक मैकेनाइज्ड बोट होगी जिसमें बड़े से बड़े बड़े जाल होते हैं, नेट होते हैं, जिसमें मछलियों को पकड़ा जाता है। ठीक है, और ये इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है। श्रीलंका ने कई बार ये इंडिया के साथ ये डिस्कस किए हैं ऑन मिनिस्ट्री लेवल की ये मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स बंद यूज करना बंद कर दीजिए, लेकिन ये बंद नहीं किया गया, केवल आश्वासन ही दिया गया उनको कि हम बंद कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, इस कारण से श्रीलंका नेवी ने इसका जवाब भी दिया, इन्होंने ऑलमोस्ट 700 प्लस जो इंडियन फिशरमैन है उनको किल कर दिया है इस डिस्प्यूट के चलते 2013 से लेके अब तक। ठीक है, ये फिशिंग डिस्प्यूट रहा ही है हमेशा से। ठीक है, सो दूसरा जो मेजर इशू ऑफ कंसर्न है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस डोमिनेंस ओवर द श्रीलंका। हमें ये जान के हैरानी होगी कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका था कि हम्बाटोटा जो प्रोजेक्ट था श्रीलंका में जो बनने जा रहा था, वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया गया चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज कंपनीज को। और ये चाइना हम पहले से ही जानता था कि ये श्रीलंका इस लोन को, इस डेबिट जो दे रहे हैं वो हम्बाटोटा को प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो श्रीलंका चुका नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और ये लीज में ले लिया अपने अंडर। एक तो डोमिनेंस बढ़ी उनकी इस इंडियन ओशन में, और एक हम्बाटोटा आया, उसकी उनकी उन्हीं की कंपनी को फायदा होगा, उन्हीं के लोगों को फायदा होगा, और चाइना के ही इकोनॉमी इनडायरेक्टली फायदे में होगी। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन वो पर्सन है जिन्होंने लीज पे दिया था श्रीलंका को हम्बाटोटा पोर्ट, और ये उस टाइम के पीएम है श्रीलंका के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2019। ठीक है, इनका नाम भी मैं आगे बताऊंगा, इनका नाम है रेनियल वेंगचंडा, समथिंग लाइक दैट, प्रॉपर्ली मैं आपको आगे अगले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, इंडियन श्रीलंका की कॉर्पोरेशन और भी है, काफी जगह कॉर्पोरेशन है। हमने रिसेंटली इनको वैक्सीन की डोजेस प्रोवाइड की, ट्रेनिंग इनको इनके मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन दी वेरियस डिफरेंट डिफेंस अकेडमीज लाइक इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ओटीए एंड अदर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ दी कंट्री इंडिया। ओके, मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी अपनी काफ़ी है। एक तो हम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं आर्मी की, एक करते हैं नेवी की। जो मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी की है वो है मित्र शक्ति, एंड जो नेवी की है वो है सिलिनेक्स। ठीक है, ये दो मिलिट्री एक्सरसाइज को याद रखना, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम क्राइसिस, व्हाई श्रीलंका फेसिंग क्राइसिस दिस पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये अभी हुआ, अचानक हुआ, या ये पहले से बनता आ रहा है? ये पहले से ही बनता आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, वो फटती है अचानक, बट उसका कारण पहले से होता है। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने जब ये क्राइसिस आए तो इंडिया ने प्रोवाइड किया $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। जिनको नहीं पता कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट वो चीज होती है कि आप कोई भी सॉफ्ट लोन होते हैं, जैसे कि आप कुछ भी $1 बिलियन का कुछ भी परचेज कर सकते हैं इंडिया से
एज अ लोन, ठीक है। ये लोन होता है आपको, जब आपकी परिस्थितियां सुधरेंगी तब आप इसको वापस भी देंगे, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। अब लेट अस डिस्कस सम द पॉइंट्स which make it clear कि how did Sri Lanka end up in this economic crisis, ठीक है। नंबर वन इज मैसिव एक्सटर्नल डेबिट सिंस 2010। 2010 जब 2009 में सिविल वॉर खत्म हुई तो साइलेंट जो कि है श्रीलंका, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा कर्ज उठाना शुरू किया वर्ल्ड एजेंसियों से, जैसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आईएमएफ से। आईएमएफ जनरली लोन देता नहीं है, बड़ी प्री कंडीशंस पे देता है, उस पर भी उठाया इन्होंने। फिर चाइना कंट्री से भी उठाया, चाइना, इंडिया, जापान, इनसे भी लोन उठा रखा है। फिर वर्ल्ड बैंक से भी उठा रखा है, और उस लोन का इन्होंने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, ठीक है। ये यूज क्या करते थे, उसका मैक्सिमम हिस्सा देते थे ये जो पॉलिसीज फ्रेम होती है टू बिल्ड द पुअर with financially condition, like providing them free rations, providing them free opportunities, free scholarships। बट वो जो फ्री का गया उसका बेनिफिट इन्होंने लॉन्ग टर्म में लिया नहीं उनसे, ठीक है। अगर वो बेनिफिट लेते तो कुछ हो पाता, उसी कारण से ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट कंट्रीज पे बढ़ता गया। दूसरा पॉइंट है डिक्लाइन इन फॉरेक्स रिजर्व ड्यू टू हैवी इंपोर्ट। काफी ज्यादा ये इंपोर्ट करना शुरू कर गए, जिस कारण से इनकी जो फॉरेन रिजर्व करेंसी थी वो भी गिरना शुरू हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि इनकी रीढ़ की हड्डी है वो है टूरिज्म। पैंडेमिक ने वो रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी, ठीक है। टूरिज्म खस्ता हो गया बिल्कुल, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे टूरिज्म काफी भर भर के आता था, लेकिन 2020 के बाद ये आना भी खत्म हो चुका है। तो इसी कारण से ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया श्रीलंका की कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिस कारण से वो इस क्राइसिस में फंसे हैं। चौथा पॉइंट, हाई लेवल करप्शन इन द गवर्नमेंट। काफी ही ज्यादा करप्शन है इन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चला ही एक ही परिवार रहा है, वो है राजपक्षे। क्या नाम है उनका, एक तो है महिंद्रा राजपक्षे, जो कि इस टाइम पे अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया बतौर प्राइम मिनिस्टर। वो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कंट्री की। अभी गोबत्या राजपक्षे प्रेसिडेंट है श्रीलंका के इस टाइम पे, ठीक है। 2021 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पांचवा पॉइंट है ये, बैन कर दिया कंप्लीटली, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज ही नहीं करेंगे भाई अपन, हमने करना ही नहीं है फूड प्रोडक्शन के। इस कारण से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया। अब रातों रात आप कह दोगे कि फर्टिलाइजर को बैन ही कर देना है, तो फूड की प्रॉब्लम तो आएगी भाई। ऑर्गेनिक खेती कितनी ही जल्दी कर लोगे तुम, उसको टाइम पीरियड लगता है। ऐसे होना कि अचानक ही आप कह दोगे कल ही मेरे को सुबह उठ के 100 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसा हो नहीं पाएगा। प्रैक्टिस के साथ ही कुछ होगा, तो इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। रिसेंटली ये भी कहा गया है कि इंडिया की बात बताता हूँ मैं आपको, लद्दाख को ऑर्गेनिक खेती बना देंगे बाय द ईयर 2025 कम्प्लीटली। सिक्किम बन चुका है एक स्टेट शायद इंडिया का। अब बताइए कौन सी स्टेट बन चुकी है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक खेती में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको भी बताऊंगा कमेंट बॉक्स में लेटर ऑन, ठीक है। सो दीज आर द सम लीडर्स पिक्चर्स, ओके। महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी इस टाइम पे ये पीएम थे क्राइसिस आने से पहले भी और क्राइसिस के दौरान भी। इस टाइम पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो है रनील विक्रम सिंघी। रनील विक्रम सिंघी ये उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर थे जब श्रीलंका को इन्होंने 99 ईयर के लिए लीज दे दिया था हम्बटोटा पोर्ट, ठीक है। गोताबया राजपक्षे ये इस टाइम पे प्रेसिडेंट है ऑफ द श्रीलंका। मिथिरीपला सिरिसेना ये पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इसके श्रीलंका के, ठीक है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बिफोर ये बने महिंद्रा राजपक्षे। फिर महिंद्रा राजपक्षे के बाद अभी आए हैं 2022 में रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है। हाई लेवल करप्शन रही, हाई लेवल फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा गया, इंपोर्ट करते गए काफ़ी सारी चीज़ें। एक्सटर्नल डेब्ट तो रहा ही सिंस 2007, क्योंकि पॉलिसीज़ को इन्होंने इतने अच्छे से मेकआउट नहीं किया। फ्री का राशन देते गए, तो फ्री का देना अच्छी बात है, क्योंकि पुअर को निकालना, पुअर को उसकी पुअरनेस से निकालना भी गवर्नमेंट का ही काम है। लेकिन पॉलिसीज़ को, फंड को मैनेज करना भी ये भी एक गवर्नमेंट का ही काम है। और गवर्नमेंट बनेगी लोगों से, अच्छे नीति लाने वाले लोगों से, अच्छी सोच रखने वाले लोगों से, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने श्रीलंका की कैसी तहस नहस कर दिया श्रीलंका की क्राइसिस को। ये देख के आज भी देखा जा रहा है। अब तो ये भी बात आ गई है कि पाकिस्तान भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना शुरू कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है नॉन एसेंशियल आइटम्स का, जैसे कि फोन्स,
electronics items from the foreign countries. Okay, so answer for the question of the day is option C, that is third. India got its third ranking in the global air power 2022, leaving behind China. नंबर वन पे है यूएस, नंबर सेकंड पे है रशिया, देर आफ्टर वी स्टैंड एज नंबर थर्ड इंडिया. Hope you guys like this video. Thank you guys for watching my video. If you have any kind of suggestion, please let me know in the below comment box. I'm going to take it as a positive note and make the proper videos from next videos. Okay, don't forget to subscribe, like and share my videos. ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने enjoy किया होगा वीडियो को. आने वाली वीडियो में we are going to discuss crisis in Pakistan, relation with Pakistan, relation with other neighbor countries and also with the other foreign nations. So like this channel, subscribe this channel, share this channel with your colleagues, family members and friends. Till then, Jai Hind, goodbye.